Hey guys, this is me Rabi here. This is me Azu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गैंग ज्वाइन कर लो. हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा. प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दैट एज वेल. चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ. तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो है किंग कोहली के ऊपर, और उनका टाइटल ये है विराट कोहली मोटिवेशनल इंटरव्यू और ही स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ. जब वो परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो पा रही थी तो उस टाइम का इंटरव्यू है. उसके बाद वो ठीक हो गए थे, उन्होंने परफॉर्मेंस सेंचुरी मार के एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी वो जो 100 नहीं कर पा रहे थे वो तोड़ी थी वो. और उसके बाद से फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री. और उसके बाद क्या 100s बनाई उन्होंने. चलें देखते हैं और सुनते हैं कि विराट ऐसा क्या बोलने लगा. Wasn't just about the workload of cricket. There were many other factors on the outside as well, which contributed to, me going into that space. तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. आप जिन चीज़ों को एक सर्टेन लेंस से देख रहे होते हो, बिकॉज आप पैशन से खेल रहे हो, आप दिल से खेल रहे हो, बट बाहर चीज़ें वैसे परसीव नहीं हो रही हैं और लोग उन चीज़ों की वैल्यू को नहीं समझते हैं और आपको उस लेंस से नहीं देखते हैं. तो वो चीज़ें काफ़ी आपको एक रियलिटी चेक देती हैं कि अच्छा दिस इज हाउ थिंग्स आर एंड यू कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू थिंक एंड बी लाइक यू. तो वो चीज़ें भी मुझे रियलाइज हुई और इंटेंशनली एज यू सेड मैं कोशिश नहीं कर रहा, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं फेक कर रहा हूँ. मैं अपने आप को कंपेटिटिवनेस के जोन में पुश कर रहा था, बट इट wasn't coming naturally to me. आई एम अ पर्सन who wakes up and feels like okay let's see what the day has for me, and be part of everything that I'm doing through the day with absolute presence and involvement and happiness, and that's who I've always been. And people ask me a lot, how do you do this on the field and how do you carry on with so much intensity? I just tell them I love playing the game, and I love the fact that I have so much to contribute every ball, and I would give every inch of my energy on the field. And for me it never felt abnormal. A lot of people on the outside watched me, and even within the team they asked me, how do you keep up with it? And I just said just one simple thing: I want to make my team win at any cost, and if that means that I am gasping for breath when I walk off the field, so be it. I mean that's the kind of preparation I go through to be able to play like that. तो वो naturally नहीं हो रहा था और मुझे push करना पड़ रहा था, but I just didn't know it because I became this, this ideal kind of a sports person to look up to, and I mean, admit it. I mean, yeah, look, as I said, I'm very grateful for the fact that so many people get inspired by me, but you can't stop being a human being because of that. You also have to understand why people love you and support you. It's because you were yourself always. And even in these moments, I'm not shy to admit that I was feeling mentally down. And this is a very normal thing to feel. I mean, I'm a human being at the end of the day, and that should be a thing of, a space for people to say, hold on, if he can go through it and if he can experience the same, relax. It's normal to feel this way. It's not abnormal. Talk about it, discuss with people. No one's going to think you're weak. People are actually going to feel, empowered Yeah. and compassionate for you, and you're going to get help from sources you didn't even imagine. But we don't speak because we're hesitant. We don't want to be looked at as mentally weak or weak people. Trust me, faking to be strong is far worse than admitting to be weak, and that's something that I have no shame in saying that I was mentally feeling weak. मोटिवेशनल इंटरव्यू था उसका, बिकॉज उसमें बताया गया कि वो मेंटली डाउन थे और वो अपने इंटरनली एडमिट करते थे. बिकॉज जो वो ऑब्वियसली वो कहते थे कि मैं अपनी टीम के लिए बेस्ट क्या करता हूँ, मुझे मेरा एक ही होता था मोटिव कि आई हैव टू विन फॉर माई कंट्री. मेरे मुल्क को जीतना चाहिए एट एनी कॉस्ट. और वो फिर भी उसमें वो कहते थे, जब मैं जाता था तो मुझे फील होता था कि हाँ वो मुझे कहता है अब पता चलता कि हाँ वो चीज़ थी मेरे में कि वो मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा था किसी चीज़ के अंदर. लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है, तब मुझे शायद फील नहीं होता ना, लेकिन हाँ उस चीज़ में कुछ कमी थी मेरे उसमें. क्योंकि ये saying ना कि वो उनको वो एफर्टलेसली नहीं हो रहा था उनसे, वो पुश कर रहे थे खुद को. तो दैट मींस कि समथिंग वाज रॉन्ग इन द सीन्स, जो उनको खुद को भी रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि आखिरकार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है. और वही उन्होंने बताया कि ही वाज गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस, जो कि नॉर्मल चीज है हर इंसान को. अगर इतना बड़ा प्लेयर हो, चैंपियन प्लेयर हो, जिसकी कितनी सेंचुरीज हो, टोटल 100s में सेंचुरीज हो, और इतने मिलियन पीपल इंस्पायर हो इससे. हाँ, और इतने लोग इंस्पायर भी हो रहे हो और एकदम से एक उनकी स्ट्रीक जो है 100s बनाने की वो टूट जाए, वो खत्म हो जाए, और कोशिश करके भी नहीं बन रही. और वो मतलब कि मल्टीपल टाइम्स कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पा रहा था. तो ऑटोमेटिकली बंदा एक जाता है एक फेज में.
कि क्या मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा। जब उस फेज में आते हो तो फिर आप और गलतियां करते हो, क्योंकि जब आप नेचुरली कर रहे हो आप पुश कर रहे हो तो कि मैंने अब करना है, जब आप करने में जाते हो तो मसला बनता है। और उनकी मुझे वो बहुत बात अच्छी लगी है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग फेक जस्ट बी योरसेल्फ, दैट्स द बेस्ट थिंग। और ये भी उन्होंने बोला कि इंस्टेड थिंकिंग कि आप किसी को अगर अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं या एड्रेस करते हैं कि आई वेंट थ्रू दिस, तो ये मत सोचें कि आप वीक है, बल्कि आप स्ट्रांग है। आप अगर फेक कर रहे हैं तो उससे ज्यादा वर्स है वो सिचुएशन, इसीलिए बेहतर है। वही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी और बहुत मोटिवेशनल चीजें हैं, बहुत बातें लोगों को सुननी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, बिकॉज ही इज एक्चुअली, बिकॉज हर किसी की लाइफ में डिफरेंट फेजेस होते हैं, लेकिन ये इस तरह की सिचुएशन आज जरूर जाती है, किसी की लाइफ में आती है। तो हाँ। ये कोई ये नहीं है कि कोई वो बहुत बड़ा स्टार है तो उसकी लाइफ में आई है, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उसको एड्रेस करना और ऐसे में ऐसे मोटिवेशनल इंटरव्यूज देखकर उनसे इंस्पिरेशन लेना और फिर ग्राउंडेड रहना ही इज द बेस्ट थिंग। एनीवेज, वेदांत की ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी क्रिकेट के अलावा जो उसकी पर्सनालिटी है ना, मैं उससे बहुत इंस्पायर होती हूँ और हमेशा ही जस्ट से सच थिंग्स जो कि बहुत ना दिल को जाके लगते हैं। तो दैट्स व्हाई आई से कि ही इज किंग कोहली। सो आई रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस इंटरव्यू और बहुत सीखा भी है इस इंटरव्यू से, उनके वर्ड्स सुनकर बहुत अच्छा लगा। आई होप सो कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। और अगर रिएक्शन को भी एंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।